Dear students, our next lecture is about two-group CC disconnections, 1,4-difunctionalized compounds. In this lecture, we will discuss about introduction to two-group disconnections, 1,4-difunctionalized compounds, common strategies, guidelines used for disconnection in 1,4-difunctionalized compounds, methods using unnatural electrophilic synthons, methods using unnatural nucleophilic synthons, and functional group addition, that is FGA strategy. Now first of all, introduction to two-group disconnections, 1,4-difunctionalized compounds. As you know that difunctionalized compounds consist of two functional groups, and if the relative position of two functional group is 1,4, that is also known as 1,4-difunctionalized compound. The most common example of 1,4-difunctionalized compounds are 1,4-dioxygen compound. We can also consider 1,4-dicarbonyl compound in this case. This is very common. 1,4-dicarbonyl compounds are very common in case of 1,4-difunctionalized compounds. 1,4-dicarbonyl compounds may be 1,4-diketone, and in this case mostly we consider carbon-carbon disconnection, carbon heteroatom disconnection, and diCO. This is most common. diCO. diCO is for carbonyl. This is dicarbonyl disconnection. CC disconnections are common in 1,4-difunctionalized compounds. So in target molecule, mostly we will discuss about CC disconnection, and you can disconnect your molecule. You can carry out the retrosynthesis of your molecule by disconnecting the various carbon-carbon bonds. Now consider this molecule. This is one of the example of difunctionalized compound. Here this is carbonyl group, this is also carbonyl group. This compound consists of two carbonyl group, so this is difunctionalized. The relative position of these two group is 1,4. This is position number 1. If you consider it as 1, this is 2, this is 3, and this is 4. One carbonyl group is present at position number 1. The second carbonyl is present at position number 4. Therefore, it is 1,4-dicarbonyl compound or 1,4-dioxygen compound. Overall, it is difunctionalized compound. Now, this is also 1,4-difunctionalized compound. The difference between these two compounds is that these R group may be similar or different. These R groups are same, they are similar, and these R groups are different. This is R1 and this is R2. It means that these two are different R group. Common strategies, guidelines used for disconnection in 1,4-difunctionalized compound. Most common disconnection is from central bond of 1,4-dicarbonyl compound. यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 1,4-difunctionalized compounds होते हैं उनकी रेट्रोसिंथेसिस के लिए, उनके डिस्कनेक्शन के लिए कौन सी कॉमन स्ट्रेटेजीज जनरली हम यूज करते हैं, ताकि हम उनको यूज करके आसानी से उसकी रेट्रोसिंथेसिस कर सकें। और जब हम उसकी रेट्रोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से करेंगे तो फिर उसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस का रूट हमें मिल जाता है। तो सबसे पहली गाइडलाइन क्या है कि जो मोस्ट कॉमन डिस्कनेक्शन है 1,4-difunctionalized कंपाउंड में, स्पेशली 1,4-dicarbonyl कंपाउंड में, कि उनमें आमतौर पर जो है वो सेंट्रल कार्बन से डिस्कनेक्शन होती है। अब सेंट्रल कार्बन को अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ये सेंट्रल बॉन्ड है, दिस वन इज सेंट्रल बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, तो इनका सेंटर ये बन रहा है। तो दिस इज मोस्ट सुटेबल पोजीशन। यहाँ पे यानी आपके पास डिस्कनेक्शन हो सकती है। अब डिस्कनेक्शन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे यानी आपने इन दो ग्रुप के सेंटर से कहीं से भी करनी है, लेकिन यहाँ से जो है वो ये जनरली डिस्कनेक्शन मोस्टली यहाँ से की जाती है इस तरह के जो कंपाउंड है। डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेंट्रल बॉन्ड result two types of synthon. A natural synthon, that is enolatine, came from enolizable carbonyl compound,
and unnatural synthone, that is unnatural electrophilic synthone, came from alpha halocarbonyl compound or epoxides. These are the sources of these synthones. Here we are considering these two guidelines. These first two guidelines can be applied here. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसमें उसी तरह जो फर्स्ट गाइडलाइन हमने देखी है कि सेंट्रल बॉन्ड से आपने डिस्कनेक्शन करनी है। दिस इज सेंट्रल बॉन्ड। अब ये सेंट्रल बॉन्ड की अगर आप पोजीशन देखें तो ये 2-3 पोजीशन के दरमियान आता है, यानी आपने 2-3 पोजीशन से डिस्कनेक्शन करनी है, 2-3 पोजीशन के दरमियान से डिस्कनेक्शन करनी है। तो इस तरह जब आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो ओवरऑल हम इसे क्या कहेंगे, 1,4 डाइसियो कहेंगे। याद रखना है कि ये डिस्कनेक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप डाइकार्बोनिल कंपाउंड के अंदर डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो उनका रिलेशनशिप क्या है, 1,4। तो इसको फिर हम इधर से जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो हम यानी इनके दरमियान से जब भी हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो इसे 1,4 डाइसियो ही कहते हैं। बेशक आप यहाँ से करें लेकिन ओवरऑल ये 1,4 डाइसियो है। उसके बाद आपके पास यहाँ से जो सिंथोन बनेगा इस साइड से, जिसकी साइड पे R1 आ रहा है, यहाँ से जो आपके पास सिंथोन बनेगा ये नेचुरल सिंथोन है, जो कि इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड से आएगा, यानी इनोलेट से ये वाला सिंथोन आएगा। अब इनोलेट कहाँ से आता है, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड से आता है। यानी इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है, जिसमें यहाँ पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो, वो इनोलाइजेबल। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ रहा है, डेफिनेटली उसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह दूसरा जो आपके पास सिंथोन है दैट इज अननेचुरल सिंथोन। अननेचुरल किस तरह है, क्योंकि इस पोजीशन पे आप पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, देखें नेगेटिव, सॉरी ये देखें ये नेचुरल है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अननेचुरल हो गया। तो इस अननेचुरल सिंथोन को फिर आप कहाँ से लाएंगे, ये अल्फा हेलोकार्बोनिल कंपाउंड से आता है, क्योंकि हेलोजन जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में जब रिमूव हो जाता है तो वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है। तो इस वजह से हम इसे ओवरऑल तो अननेचुरल सिंथोन इसके लिहाज से कंसिडर करेंगे, लेकिन इसका सोर्स क्या होगा, अल्फा हेलोकार्बोनिल कंपाउंड। ओके, उसके बाद एक तीसरी गाइडलाइन है कि अनदर कॉमन डिस्कनेक्शन इज फॉर्म नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन। यानी आपको बताया था कि एक तो आपने सेंटर से डिस्कनेक्शन करनी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक नेक्स्ट टू कार्बोनिल हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टू कार्बोनिल जब आप डिस्कनेक्शन करेंगे तो एज यूजुअल आपके पास 2 टाइप्स के सिंथोन बनेंगे। ए नेचुरल सिंथोन केम फ्रॉम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एंड द अननेचुरल सिंथोन दैट विल केम फ्रॉम साइनाइडाइन। और साइनाइडाइन अगर आप ले रहे हैं तो वो COOH के लिए होता है, COOH नेगेटिव डेफिनेटली अननेचुरल सिंथोन होगा, और नाइट्रो ग्रुप भी इसके लिए आमतौर पर हो सकता है। यानी जो अननेचुरल सिंथोन होता है वो साइनाइड से भी आ सकता है और नाइट्रो ग्रुप से भी आ सकता है। नाइट्रो किसके लिए आमतौर पर होता है, कार्बोनिल के लिए। साइनाइड किसके लिए होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। तो मैंने आपको बताया था आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, तो ये कार्बोनिल के दरमियान से ओवरऑल आप कर रहे होते हैं तो आपके पास 1,4 डाइकार्बोनिल ही होगा। लेकिन पहली गाइडलाइन में आपने बिल्कुल सेंटर से डिस्कनेक्शन, सेंट्रल बॉन्ड से की है। अब आप इस पोजीशन से कर रहे हैं, नेक्स्ट टू कार्बोनिल कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये भी 1,4 डाइस कार्बोनिल कंपाउंड की डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं, तो 1,4 डाइस ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सिंथोन बनेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेचुरल सिंथोन है तो ये इसका सोर्स क्या होगा, इस पोजीशन पे तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, यानी ये अननेचुरल होगा, लेकिन इस पे हो सकता है। तो ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से आएगा। और ये वाला जो आपका सिंथोन है जो कि अननेचुरल सिंथोन है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस कुछ लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अननेचुरल सिंथोन है। इसका सोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, ये नाइट्रो कंपाउंड से आ सकता है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो साइनाइड है तो उनसे भी आमतौर पर जो है वो ये आ सकता है। तो साइनाइड से कहाँ कब आएगा, जब आपका जो R2 है यहाँ पे वो OH होगा। OH मीन कि ये फिर एसिड ग्रुप हो जाएगा। अगर ये एसिड ग्रुप वाला सिंथोन बन रहा है तो फिर ये इसका सोर्स क्या होगा, साइनाइड होगा। अदरवाइज अगर ये कार्बोनिल है तो फिर कार्बोनिल के लिए सोर्स क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड। ओके, मेथड्स यूजिंग अननेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन्स। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनमें अननेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास जो अननेचुरल सिंथोन है, आपने देखा है यहाँ पे कि ये अननेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन है और ये वाला अननेचुरल न्यूक्लियोफिलिक सिंथोन है।
तो यहाँ पे सबसे पहले फिर हम अननेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन यानी हम कौन से रूट से डिस्कनेक्शन देखेंगे, इस रूट से डिस्कनेक्शन देखेंगे, इसकी बेस पे भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन दिस मेथड control is important as in alpha halocarbonyl compound the halogen atom also enhances the acidity of alpha proton। तो यहाँ पे ये जो मेथड आपका है यानी ये जो हम अननेचुरल सिंथोन वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसमें कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अल्फा ये जो हेलोजन होता है ये इसको भी एसिडिक बना देता है, तो इस वजह से इनोलाइजेशन यानी इसकी भी हो सकती है। तो अब आपने क्या करना होता है, आपने तो इसकी इनोलाइजेशन नहीं करनी होती, आपने तो इसको हेलोजन को निकाल के इसको पॉजिटिव बनाना होता है, इसके ऊपर आपने अटैक करना होता है। तो आपने इस तरह का कोई स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है कि ये इनोलाइजेबल कार्बोनिल के तौर पर काम ना करे, जस्ट इसका जो हेलोजन है वही जो है वो क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। और अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये अपने इस एसिडिटी की बेस पे प्रोटॉन को रिमूव करके ये खुद भी इनोलेट आयन बना सकते हैं। तो इसलिए इस मेथड में कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 1, इथाइल 2,2-ऑक्सो साइक्लोपेंटाइल एसीटेट। रेट्रोसिंथेसिस की देखते हैं। दिस इज 1,4-डाइकार्बोनिल। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 1 और 4 पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास जो है वो वही स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट गाइडलाइन देखी थी कि सेंट्रल बॉन्ड से हमने डिस्कनेक्शन करनी है। तो अब यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करेंगे, ये दिस इज यहाँ पे डिस्कनेक्शन का साइन लगा दें, ये डिस्कनेक्शन यहाँ से आप करेंगे। तो ओवरऑल आपके पास ये सी डिस्कनेक्शन है, लेकिन रिलेशनशिप क्या है, 1,4-डाइसियो आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो ये नेचुरल सिंथोन बनेगा इनोलेट वाला, और ये अननेचुरल बनेगा। अब जो आपका नेचुरल सिंथोन बन रहा है ये वाला, तो अब इसके लिए आपके पास सोर्स जस्ट जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड भी हो सकता है, यानी जस्ट जो है वो आपके पास साइक्लोपेंटानोन भी हो सकता है, क्योंकि इसकी ये पोजीशन जो है ये इनोलाइजेबल, ये भी पोजीशन इनोलाइजेबल है और ये भी। और इसका जो दूसरा सोर्स है वो यहाँ पे इस पे आप एस्टर लगा के इसे यानी कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर जो है वो भी इसका सोर्स हो सकता है। बीटा कीटो एस्टर बेस्ट होगा यहाँ पे इस वजह से कि इसके अंदर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिटी को ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह वो जो कंट्रोल वाला प्रॉब्लम था जो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, अदरवाइज इसकी एसिडिटी की बेस पे भी इनोलाइजेशन हो सकती है। तो आपने फिर दूसरी की एसिडिटी को बढ़ाना होता है ताकि जो है फिर यही वाला जो है वो इनोलेट बनाए, दूसरा जो हेलोजन वाला है वो इनोलेट ना बनाए। तो इसके लिए आप या तो आप एक्टिवेटिंग ग्रुप आमतौर पर ये यूज करेंगे, या आप जो है वो इसके लिए यानी ये जो इस पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए, इसको ज़्यादा सूटेबल बनाने के लिए, ताकि ये आसानी से हेलोजन वाले कार्बन पे अटैक करे, तो इसको इनमाइन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक्टिवेशन के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, may be disconnected further by using guidelines for 1,3-डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ऑलरेडी हमने 1,3-डाइकार्बोनिल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो 1,3-डाइकार्बोनिल के लिए जो दिस इज बीटा कीटो एस्टर की गाइडलाइन ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, उनकी बेस पे आप इसको फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इफ वी डायरेक्टली यूज दिस कंपाउंड फॉर इनोलाइजेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसे डायरेक्टली यूज करें, ये यूज ना करें, मैंने आपको कहा है कि ये बेस्ट है आपके लिए, ये इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा, देखते हैं। then there will be no control because alpha hydrogen of alpha bromo ester is also acidic। ये देखते हैं आपके पास ये हाइड्रोजन भी एसिडिक, अब ये एसिडिक, ये तो मुकाबला होगा इन दोनों का आपस में। तो फिर अब ये अगर ये प्रोटॉन निकालेगा और ये अगर अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये तो आपका अनडिजायर्ड रिएक्शन होगा। सो दैट कैन इनोलाइज टू अटैक एट कार्बोनिल ऑफ साइक्लोपेंटानोन। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जब इनोलेट बनाएगा तो ये डेफिनेटली फिर इस पे कार्बोनिल पे अटैक, इधर अटैक इसका होगा, तो आपके पास फिर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा जो आप यहाँ पे नहीं चाह रहे। आपका जो प्रोडक्ट है वो ये होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए फिर इस तरह का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो बेस्ट होगा। इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम रूट 1 देखते हैं। रूट 1 इसका कौन सा है, यूजिंग एन इनमाइन फॉर एक्टिवेशन। आप इनमाइन के थ्रू ये रिएक्शन कर सकते हैं। इनमाइन के थ्रू कैसे करेंगे, इसके लिए जो है वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात की है ना कि एक्टिवेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एस्टर ग्रुप लगाएंगे इनमाइन के थ्रू। तो हम इनमाइन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले आप
मॉर्फोलिन यूज़ करेंगे। मॉर्फोलिन जो है वो एक एमाइन है हमारे पास, तो एथोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें NH ग्रुप मौजूद है जो एमाइन को शो कर रहा है। तो इसको हम जब इसके साथ ट्रीट करेंगे साइक्लोपेंटानोन के साथ, तो आपके पास ऑलरेडी आपने इन एमाइन बनने का मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो इसमें जो है वो आपके पास इन एमाइन बन जाता है पहले इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और उसके बाद जब इन एमाइन बन जाएगा तो इन एमाइन क्यों कहते हैं, देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन और साथ एमाइन ग्रुप। तो इसका लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जो अटैक करेगा सामने वाले, यानी जो आप अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर अटैक करेगा। अल्फा हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप और सब्सटीट्यूशन हो जाएगी उसकी जगह पे, ये अटैक कर लेगा। तो अब इन एमाइन का आपको एडवांटेज क्या हुआ कि इसने इस पोजीशन को एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे फिर वो जो कंट्रोल वाला प्रॉब्लम है वो नहीं होगा कि वो अब इधर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये इतना एक्टिव हो गया है कि अब जो खुद ही जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। ये देखें ना, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है इधर से, ये आसानी से। तो ये सिंपल इनोलेट अगर आप इसका बनाते हैं तो इतना अच्छा नहीं था, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। ये जब अटैक करेगा ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ब्रोमाइड को आप इधर शो कर दें इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए, साल्ट एसोसिएशन आप शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपका ये वाला बॉन्ड आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल आप देखें इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पोजीशन पे चार्ज आ जाएगा। तो उसके बाद आप इसके ऊपर वाटर का अटैक करवाएं। अब आप इसकी रिमूवल कर रहे हैं, क्योंकि इन एमाइन में क्या होता है कि आपने जो एमाइन है उसे इंट्रोड्यूस करना है, रिएक्शन डिजायर्ड रिएक्शन करना है, फिर आपने उसे निकालना है। तो निकालने के लिए आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर आप ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद वाटर जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 बॉन्ड बनाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ब्रोमाइड इसके साथ शो कर दें। उसके बाद आप इसका हाइड्रोजन शिफ्ट कर लें इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि इस पर लोन पेयर है तो वो एज ए बेस काम करेगा, प्रोटॉन को लेगा। और उसके बाद जो है वो इसका जो आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसको इधर शिफ्ट करें और इसको निकाल लें यहाँ से, तो ये निकल जाएगा आपके पास। और ओवरऑल ब्रोमाइड इधर ही होगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आप इसका यहाँ से ओवरऑल HBr निकाल लें, या आप यहाँ से H3O पॉजिटिव निकाल लें। H3O पॉजिटिव निकालेंगे तो साथ ब्रोमाइड भी फिर आपने निकालना है। तो H3O पॉजिटिव आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से वाटर ऐड करें, तो प्रोटॉन ऑलरेडी यहाँ पे आपका मौजूद है, तो उसके बाद जो है वो आप इसको हाइड्रोनियम में कन्वर्ट करके इस तरह भी शो कर सकते हैं। एक ही बात, अगर आप इस तरह लिख रहे हैं इस तरह, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आपका ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, इसका रूट 2, इसी एग्जांपल का दूसरा रूट कौन सा है जिसमें हम CO2 ET यानी एस्टर को एज एक्टिवेटिंग ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी पोजीशन की एसिडिटी को इंक्रीज करना है तो आप एस्टर को रिड्यूस कर सकते हैं, बाद में कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन से उसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एस्टर ग्रुप जो है वो हमने बीटा कीटो एस्टर लिया है, तो इसके साथ इनोलाइजेशन पहले करेंगे, इनोलेट आयन आप इसको बनाएंगे, इनोलेट अटैक करेगा। अब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है ये पोजीशन, तो इसका कंजुगेट बेस भी स्टेबल होगा। ये देखें, ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी, तो इंडक्टिव के थ्रू भी स्टेबल होगा, रेजोनेंस के थ्रू भी। तो ये जब अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यानी यहाँ से ब्रोमीन पे निकल जाएगा, और उसके बाद इसकी एसिडिटी ओवरऑल यानी इससे कम है, ब्रोमीन निकल जाएगा, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये ऑलरेडी पहले से मौजूद था इधर। उसके बाद आप इस ग्रुप को आपने अभी निकालना है, क्योंकि आपका ये तो टारगेट मॉलिक्यूल में मौजूद है लेकिन ये आपके टारगेट मॉलिक्यूल में नहीं है। तो आप इसकी सबसे पहले करें हाइड्रोलिसिस, ताकि ये COOH में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप इसको हीट दें, तो जब आप हीट देंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन इधर रह जाएगा, CO2 निकल जाएगा, तो आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, एग्जांपल नंबर 2, 1,5-dimethyl 4-oxo-6-oxo-5-cyclo-3-10 हेक्सेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं। रेट्रोसिंथेसिस में यहाँ पे एज यूजुअल आप देखेंगे ये एपॉक्साइड है, तो एपॉक्साइड किससे बनता है, आमतौर पर अल्कीन से बनता है। तो आप सबसे पहले CO डिस्कनेक्शन इसकी कर लें दोनों साइड से। उसके बाद आप इसकी FGI करेंगे। FGI आप कौन से ग्रुप की कर रहे हैं, एसिड ग्रुप की। एसिड ग्रुप कहाँ से आ सकता है, एस्टर से आ सकता है। तो FGI आप कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, FGI के बाद फर्दर आपने FGI करना है। फर्दर FGI क्या है कि ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये डिहाइड्रेशन से बनता है। तो आप इधर OH को शो कर दें, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे फॉरवर्ड में ये डिहाइड्रेशन से ये बनेगा। तो फिर उसके बाद आपने इसकी 1,3-डाई करना है, 1,3-डाई ऑक्सीजन कंपाउंड है ये, तो 1,3-डाई कर लें इसका, यहाँ से डिस्कनेक्शन कर लें।
उसके बाद आपके पास जो है वो जब यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा ये वाला, और ये इनोलाइजेबल पोजीशन बन जाएगी, ये आपके पास ये इनोलेट बन जाएगी ये पोजीशन फॉरवर्ड में। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से डिस्कनेक्शन करनी है, जो कि एक्चुअल हम डिस्कस कर रहे हैं 1,4 डाइफंक्शनल कंपाउंड के अंदर डिस्कनेक्शन। तो ये 1,4 डाइसीओ होगी, 1,4 डाइकार्बोनिल बन रहा है, आप दे सकते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 इधर से भी ये डाइकार्बोनिल है, लेकिन आप इधर से देखें तो इधर से भी आपके पास ये डाइकार्बोनिल बन रहा है 1 2 3 4। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1 3 बन रहा है इस तरफ से। तो आप ये रिलेशनशिप ले रहे हैं इस वक्त, इसको देख लें, ये इसको देख लें। उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है वो इसकी डिस्कनेक्शन कर लें 1,4 डाइकार्बोनिल की। तो यहाँ से वही सेंट्रल वाले जो गाइडलाइन हमने पढ़ी थी वही अभी तक हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो अननेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सिंथ्रोन बनाना होता है। इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला जो आपका पार्ट है, दिस वन, ये वाला पार्ट, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये इनोलाइजेबल कार्बोनिल है और ये आपका अल्फा हेलो है। उसके बाद इसकी 1,3 डायो कर लें। 1,3 डायो करेंगे, डेफिनेटली आपने बीटा कीटो एस्टर के बारे में पढ़ा था, इथाइल एसीटो एसीटेट है ये, तो इसके बारे में आपने पढ़ा था कि इसका जो प्रिकर्सर होता है यानी स्टार्टिंग मटीरियल होता है वो इथाइल एसीटेट होता है। तो इधर से आप डिस्कनेक्शन करेंगे, डेफिनेटली आपके पास इधर OET आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो दूसरा ऑलरेडी इसमें OET मौजूद है, तो आपके पास जो है वो ये भी इथाइल एसीटेट और दूसरे, यानी दो सेम मॉलिक्यूल से ये बनेगा आपके पास। फॉरवर्ड रिएक्शन में इथाइल एसीटेट की कंडेंसेशन करें आप, तो जब एक का इनोलेट दूसरे पे टेक करेगा, दूसरे को OET निकाल देगा, तो आपके पास ये बीटा कीटो एस्टर बन जाता है। अल्फा हेलो को कैसे आप जो है डिस्कनेक्ट करेंगे, तो इसमें CBr डिस्कनेक्शन कर लें, चूँकि अल्फा हेलोजनेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हेलोजनेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है FGI कर लें फर्दर इसकी। तो जो हमारे पास कीटोन होता है वो किससे आमतौर पर बनता है, अल्काइन से। तो डेफिनेटली ये वाला कार्बोनिल ग्रुप आपका अल्काइन से आएगा, और इसको आप यानी एक्चुअली आप इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहाँ से, ठीक है। जब आप इसका स्टार्टिंग मटेरियल लिखेंगे तो यहाँ पे इन दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आएगा। उसके बाद आप अल्काइन, चूँकि ये हायर अल्काइन है, तो इसको आप एसिटाइलिन से बना सकते हैं, तो एसिटाइलिन की मिथाइलेशन आप कर सकते हैं। तो 2cc डिस्कनेक्शन आप इसकी कर लें, एसिटाइलिन सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मटीरियल यहाँ पे बन जाएगा। अदरवाइज आपके पास ये भी स्टार्टिंग मटीरियल के तौर पर आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इनकी फर्दर डिस्कनेक्शन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस की हुई है। ओके, अब देखते हैं इसकी फॉरवर्ड सेंसेस। फॉरवर्ड सेंसर में सबसे पहले आप देख सकते हैं सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, इथाइल एसीटेट की क्लेजन कंडेंसेशन होगी। उसके बाद जो है वो बीटा कीटो एस्टर बनेगा। फिर आप दूसरा जो प्रिकर्सर है वो आपको चाहिए अल्फा हेलो वाला, तो उसको कैसे बनाएंगे, एसिटाइलिन की आप जो है वो पहले एमाइन के साथ में सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट करेंगे अमोनिया की मौजूदगी में, तो इसका एसिटाइलाइड बनेगा, यानी नेगेटिव आयन इसके ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो साल्ट एसोसिएशन बन जाएगी यानी सोडियम के साथ, तो ये अटैक करेगा, फिर मिथाइल पॉजिटिव पे आई निकल जाएगा, तो मिथाइलेशन एक साइड पे, इसी तरह पे दूसरी साइड पे मिथाइलेशन, डाइमिथाइलेशन होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये वाटर यहाँ से रिमूव करने इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास जो अल्काइन बन जाएगा उसकी आपने हाइड्रेशन करनी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरी सल्फेट, तो इनोल बन जाएगा। फिर इनोल की आपने टाटोमराइजेशन करनी है, तो वो कीटो फॉर्म बन जाएगा। अगर देखें कार्बोनिल आपका अगर इस साइड से बन जाए या इस साइड से, एक ही बात है, ये 2 पोजीशन बन रही है। अगर आप इधर से कार्बोनिल लगाते हैं इस पोजीशन, ये भी 2 है, अगर आप इधर लगाते हैं तो ये भी 2 है। तो इस वजह से इधर इनोल का OH आप शो कर देंगे, इधर एक ही बात है, इधर आप OH शो करेंगे तो रिकार्बोनिल आपको होगा। उसके बाद आप इसकी ब्रोमिनेशन करें, अल्फा ब्रोमिनेशन, यहाँ पे आप एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे इसकी ब्रोमिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आप इसको सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करें, जो बेस है इसकी यहाँ पे इनोलाइजेशन करेगा, इसको आप यूज़ करें तो इसकी इनोलाइजेशन करेगा, तो इसका फिर इनोलेट इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, साइक्लाइजेशन करनी है, तो सोडियम इथोक्साइड इधर से प्रोटॉन निकालेगा, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये इधर प्रोटोनेशन करेंगे, OH बन जाएगा। फिर आप इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपके पास अल्फा बीटा एमसीपीरेटेड बन जाएगा। फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, किसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इस ग्रुप की, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपने इसकी एपॉक्सीडेशन करनी है। वो मोस्टली हम किसकी मौजूदगी में करते हैं, H2O2 की मौजूदगी में। तो ये आपके पास यहाँ पे एपॉक्साइड बन जाएगा और ये ओवरऑल आपका क्या है, स्टार्टिंग मटीरियल बन रहा है, और सॉरी टारगेट मॉलिक्यूल आपका बन रहा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखें तो एक और आप यहाँ पे रिएक्शन देखें, इसके अंदर फर्दर एक और रिएक्शन भी हो सकता है। ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसके अंदर फर्दर आप एक और रिएक्शन देखें, आप इसका इनोलेट इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। अब इसका इनोलेट इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे दो पोजीशन आपकी बन रही है, ये भी इनोलाइजेबल पोजीशन है, ये भी इनोलाइजेबल पोजीशन है। तो इसका इनोलेट इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसका इनोलेट इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये प्रोडक्ट। आपका जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो तो ये बन रही। तो अब ये वाला जो रिएक्शन है ये फेवरेबल नहीं है। वैसे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन ये फेवरेबल नहीं है। वजह क्या है कि दिस इज ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ये रिएक्शन फेल हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये इधर अटैक करेगा तो ये इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका यहाँ पे फिर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो अब ये ज़्यादा बेहतर है कि ये पोजीशन जो है इसके ऊपर अटैक कर ले, क्योंकि यहाँ छोटा ग्रुप लगा हुआ है। तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से इसका इसके ऊपर अटैक करना मुश्किल काम है, और इसका इसके कार्बोनिल पे अटैक करना आसान है। यानी ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। अगर डेफिनेटली अगर आपको ये वाला बनेगा तो ये बीटा हाइड्रोक्सी है, इसकी आप डीहाइड्रेशन करेंगे तो फिर आपके पास ये आएगा, यानी इससे फिर आप इन्हें ये बनाना होगा। तो आप अगर इसको देखें या इसको देखें, ये आपके पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते। ये इनकी तरफ जो आपका रिएक्शन है वो फेल हो जाएगा, जबकि ये वाला फेवरेबल रूट बन रहा है आपका, तो आपके पास ये डिजायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। दिस इज योर टारगेट मॉलिक्यूल जो हमने स्टार्ट में लिया था। ओके, एग्जांपल नंबर 3, 5-ब्रोमोपेंटेन 2-ON। इसकी रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप FGI करेंगे। देखें, आपने ऐसी सिचुएशन पहले क्रिएट करनी है कि आपके पास वो जो 1,4-डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है उसकी गाइडलाइन अप्लाई हो सके। तो आप इसकी FGI कर लें तो ये ब्रोमीन किससे आता है, OH से आ सकता है, OH की रिप्लेसमेंट से ब्रोमीन आता है। और उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे अब आप 1,4-डायो करेंगे। नाउ दिस इज नॉट 1,4-डाई-CO, आप इसे 1,4-डायो कह सकते हैं। समटाइम 1,4-डाई-CO भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट गाइडलाइन आप वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1,4-डायो कहते हैं इसको, 1,4-डायो कर लें। और यहाँ पे 1,4-डायो जब करेंगे, ये 1,4-डाई ऑक्सीजन कंपाउंड बन रहा है, जिस तरह आपने 1,3 पढ़े थे। तो वही पोजीशन है जिससे हमने फर्स्ट गाइडलाइन की बात की कि हमारे पास एक नेचुरल सिंथोन बनेगा और एक अननेचुरल इलेक्ट्रोफिलिक सिंथोन बनेगा। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपका इससे आएगा, इनोलाइजेबल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये वाला पार्ट आपका एपॉक्साइड से आ सकता है। कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ये जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है अननेचुरल सिंथोन होता है, इसका जो दूसरा सोर्स होता है वो एपॉक्साइड हो सकता है। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस आप देखें, आप इसका इनोलेट बनाएं सोडियम इथोक्साइड के साथ और इसके ऊपर अटैक करवाएं, तो आपके पास ओवरऑल यहाँ पे जब इस पर अटैक करेगा तो इसका ये पहले साल्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ये जो साल्ट बनेगा आपके पास, इसके नेगेटिव आयन जो है वो आप इसका OH भी बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस करके, लेकिन उससे पहले ही आप इस पर अटैक करवा लें। तो इसका जो साल्ट है उसका ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक करेगा, सामने वाले कार्बोनेट पे साइक्लाइजेशन हो जाएगी और आपके पास जो है वो ओवरऑल सोडियम इथोक्साइड यानी यहाँ से निकलेगा। तो 3-एसिटाइल डाईहाइड्रोफ्यूरैन 2,3H ON बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको HBr के साथ ट्रीट करना है। तो जब आप इसको HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी सबसे पहले। तो इसकी HBr प्रोटोनेशन करेगा तो अब ये वाला रिंग फिर ब्रेक होगा, यानी ये रिंग अगर आप एसिड डालेंगे तो ये रिंग स्टेबल नहीं होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद ये ब्रोमाइड इस पोजीशन पे जाके अटैक कर लेता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास ये इधर OH आ गया, ये इधर ब्रोमीन आ गया, यानी आपका ये एसिड ग्रुप अभी आ चुका है इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब ये वाला ग्रुप तो आपको दरकार नहीं है, यहाँ पे ये एसिड ग्रुप है, तो आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करें। जस्ट आप हीट देंगे तो हाइड्रोजन इधर रह जाएगा कार्बन पे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। और दिस इज फॉरवर्ड सिंथेसिस। Now methods using unnatural nucleophilic synthones.
अननेचुरल न्यूक्लियोफिलिक सिंथोन दूसरी जो गाइडलाइन हमने डिस्कस की थी कि नेक्स्ट टू कार्बोनेट भी हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें अननेचुरल न्यूक्लियोफिलिक सिंथोन बनेगा। तो रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है 3-फिनाइल पाइरोलिडीन 2,5 डायोन। और इसकी रेट्रोसिंथेसिस में अगर यहाँ पे आप देखें तो उसी तरह आपने जिस तरह वो एपोक्साइड में हमने पढ़ा था, इसकी भी इसी तरह आप सबसे पहले क्या करेंगे, CN डिस्कनेक्शन करेंगे। वो CO कर रहे थे आप, तो CN डिस्कनेक्शन आप करेंगे तो डेफिनेटली ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड से ये बनता है आमतौर पर फॉरवर्ड सिंथेसिस, यानी उसके अमाइन के साथ आप ट्रीट करें तो अमाइन इसके साथ कंडेंसेशन करेगा इस साइड से भी और इस साइड से, तो ये बन जाएगा, ये साइक्लिक रिंग आपके पास बन जाएगी जिस तरह पाइरोल में आपने पढ़ा हुआ। तो उसके बाद आपके पास ये डाइएसिड बन जाएगा इधर, और साथ ये अमाइन वाला जो स्टार्टिंग मटीरियल है आपका वो अगर यानी उसके सिंथोन से आप उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अमोनिया शो करेंगे। उसके बाद आपने इसकी डिस्कनेक्शन करनी है यहाँ पे, दिस इज 1,4-डाई-CO, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1,4-डाई-CO। 1,4-डाई-CO करेंगे तो यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होगा और आपके पास जो है वो ये नेगेटिव पार्ट बन जाएगा और दूसरा ये पॉजिटिव, यानी ये अननेचुरल सिंथोन है। तो इसका सोर्स आपको बताया था साइनाइड होता है, और साइनाइड का सोर्स पोटेशियम साइनाइड हम यूज़ करते हैं। और ये जो नेचुरल सिंथोन है तो डेफिनेटली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से आएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है वो किससे आता है, साइनाइड से आता है। और फिर जो इसकी फर्दर आप FTI करेंगे तो ये आपके पास डेफिनेटली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड उसी तरह बन रहा है, तो इधर आप इसको आप डिहाइड्रेशन से बना सकते हैं इसको, तो इधर OH लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपके पास ये साइनाइड वाला सिंथोन बन जाएगा, और दूसरा आपके पास जो है वो ये साथ जो है ये वाला सिंथोन जो बनेगा ये किससे आएगा, ये बेंजल्डिहाइड से आएगा, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड से आएगा। इसी तरीके से ये वाला आप कहाँ से लाएंगे, ये आप साइनाइड जो है वो साइनो एस्टर से लाएंगे। तो इसमें जो एस्टर ग्रुप आपने क्यों लगाया, एक्टिवेशन के लिए, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा एसिडिक पोजीशन आपकी नहीं बन रही थी, तो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने साथ एस्टर लगा दिया। इसकी फॉरवर्ड सिंथेसिस बेंजल्डिहाइड से हम स्टार्ट ले रहे हैं। बेंजल्डिहाइड को जब आप ट्रीट करेंगे इस साइनो एस्टर के साथ तो इसमें सोडियम एथोक्साइड जो है इसकी इनोलाइजेशन करेगा, इसमें इनोलेट बनाएगा, उस वो इनोलेट इसके ऊपर अटैक करेगा तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। बीटा हाइड्रोक्सी की डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा। उसके बाद आपने इसमें KCN ऐड करना है। जब आप KCN ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसकी एडिशन हो जाएगी इधर, तो जब इस पे ऊपर इसकी एडिशन होगी एक पोजीशन पे CN आएगा, एक पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ दूसरी पोजीशन पे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद यानी ओवरऑल HCN की एडिशन जिस तरह हम शो करते हैं HCl की एडिशन हो रही है, लेकिन आप KCN ऐड करके फिर आप प्रोटॉन यानी हाइड्रोलिसिस के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें एसिड की मौजूदगी में, तो आपका जो साइनाइड है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एसिड ग्रुप के अंदर। साइनाइड विल बी चेंज इनटू एसिड ग्रुप। और उसके बाद जो एसिड है आपका वो उसको आप हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन इसकी हो जाएगी। जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो आपके पास कौन सी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इस ग्रुप की, क्योंकि ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है अभी, ये तो आपको रिक्वायर्ड है लेकिन ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी मोनो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। उसके बाद आप उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करें तो ये कंडेंसेशन होगी, इधर अमोनिया का एप्लीकेशन ऑलरेडी अपने पायरोल में पड़ा हुआ है, तो उस तरह ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा, इधर से ओवरऑल वाटर निकलेगा, यानी एक वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से 2 वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकलेंगे। तो एक पहले हम निकाल रहे हैं, यानी पहले में अमोनिया इधर आके अटैक करेगा, वाटर निकालेगा, कंडेंसेशन इसकी इधर होगी इसके साथ, फिर दूसरे में ये जो माइन ग्रुप है ये फर्दर इस पर अटैक करेगा, इधर से फिर वाटर ओवरऑल निकलेगा, तो आपके पास यहाँ पे ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 दैट इज 2,3-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन 2-इनोल। इसकी रेट्रोसिंथेसिस देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप एज यूजुअल जो है वो यहाँ पे पहले आप बीटा हाइड्रोक्सी बना सकते हैं इधर, और उसके बाद जो है वो उसकी फर्दर आप डिस्कनेक्शन यहाँ से करेंगे। तो इसकी हमने क्या की है कि सबसे पहले FTI करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा, उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी के बाद हमने 1,4-डायो उसका करना है, 1,4-डायो, बल्कि बीटा हाइड्रोक्सी जब आप बनाएंगे तो उसकी यहाँ से आप डिस्कनेक्शन पहले कर लेंगे। ओवरऑल नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि जब आप इसकी यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे बीटा हाइड्रोक्सी इधर OH आएगा, तो यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करेंगे, ये न्यूलाइजेबल पोजीशन बनेगी, इधर आपका इस जगह पे आपका कार्बोनिल बन जाएगा। तो
यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा मिसिंग है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे बाद में कि ये आपके पास जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो आप इसकी FPI करेंगे, इधर OH आएगा। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट 1,3 डायो वाली डिस्कनेक्शन करनी है, तो 1,3 डायो वाली करेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी तो ये आपको इनोलाइजेबल पोजीशन बन रही है ये वाली, और यहाँ पे ये आपका OH वाली पोजीशन किस में चेंज हो जाएगी, कार्बोनाइल में। उसके बाद आप 1,4 डाई CO करेंगे, तो यहाँ पे वो फिर ऐड कर लें, बीटा हाइड्रोक्सी वाला यहाँ पे ऐड नहीं है, उसको आप ऐड कर लें। उसके बाद 1,4 डाई CO करेंगे इस पोजीशन से, क्योंकि अननेचुरल निक्लोफिलिक सिंथोन आपने बनाना है, तो ये अननेचुरल निक्लोफिलिक सिंथोन कार्बोनाइल वाला बन रहा है आपके पास, और ये इलेक्ट्रोफिलिक है और ये नेचुरल है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से आएगा। अब ये वाला सिंथोन चूंकि किससे आता है, मैंने आपको बताया है कि आपका ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप फिर किससे आएगा, दैट विल कम फ्रॉम नाइट्रो ग्रुप, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह फिर नाइट्रो लगा दें, तो ये आपका फिर इस सोर्स से ये वाला ग्रुप आ सकता है। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस कैसे होगी कि इसमें ये जो नाइट्रो कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, दैट इज 1 नाइट्रोप्रोपेन, इसको हम ट्रीट करेंगे इस एमाइन के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये एमाइन जो है इसके साथ हम ट्रीट करेंगे। अब इस एमाइन का काम क्या है, दिस इज डाई आइसोप्रोपाइल एमाइन, तो ये डाई एन प्रोपाइल एमाइन, तो ये एन प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास ये एमाइन जो है वो इधर से प्रोटॉन को निकालेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से प्रोटॉन को, तो ओवरऑल ये नहीं इसका इनोलेट बन जाएगा। अब ये एसिडिक पोजीशन बन रही है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि इस प्रोटॉन, ये जो पोजीशन है इसका आपने अटैक करवाना है इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड से, यानी आप माइकल एडिशन रिएक्शन यहाँ पे करेंगे। कौन सा रिएक्शन करेंगे, माइकल एडिशन रिएक्शन। तो माइकल एडिशन आप यहाँ पे करेंगे, जिस तरह प्रीवियस रिएक्शन में हम HCN को ऐड कर रहे थे, ये KCN को, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल चेंज है, ये हम दूसरा न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास माइकल एडिशन रिएक्शन जब होगा तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको TiCl3 के साथ ट्रीट करना है। उसका काम क्या होता है वाटर यूनिवर्सिटी में, दैट विल कन्वर्ट योर नाइट्रो ग्रुप इनटू कार्बोनाइल, यानी यहाँ पे ये कार्बन तो ऑलरेडी मौजूद है, इसका हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करेगा ओवरऑल, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोजन को इधर से रिप्लेस करेगा और इधर से ओवरऑल आपके नाइट्रोजन यानी NO2 की जगह यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कार्बोनिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस जगह पे नाइट्रो की जगह पे कार्बोनिल आ जाएगा। उसके बाद कार्बोनिल आपने जब बना लिया, अब देखें ये आपने नाइट्रो से कार्बोनिल इसके थ्रू आपने बनाना है, ये आपने याद रखना है। फिर हमने इसको NaOH के साथ ट्रीट करना है जो कि बेस है, इसकी इनोलाइजेशन करेगा, फिर ये उसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, तो आप ये वाला यहाँ पे यूज़ करें। पहले FPI के बाद आप इसको लिखें, फिर उसके बाद आपने एक रेट्रो का एरो लगाना है और फिर आपने उसके ऊपर लिखना है 1,3 डाइओ। उसके बाद इसकी आप डिहाइड्रेशन करें तो आपके पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप एडिशन, दैट इज FGA स्ट्रेटेजी। समटाइम फंक्शनल ग्रुप एडिशन स्ट्रेटेजी भी यूज़ होती है 1,4 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप एडिशन क्या होता है, कहीं पे अगर आपका कोई ग्रुप जो है वो रोल प्ले कर सकता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसको ऐड करेंगे तो उसके फंक्शन ग्रुप एडिशन कहता है। एक फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है, ये बिल्कुल दोनों आप मतलब डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है FGI, और ये फंक्शन ग्रुप एडिशन है। आप इसमें ग्रुप पहले मौजूद नहीं होता, आप ऐड करते हैं अपने रिक्वायर्ड रिएक्शन के लिए। Functional group addition is same in some target molecules, gives a simple strategy for assembling, constructing a 1,4 difunctionalized skeleton, 1,4 dicarbonyl skeleton। यानी इसके थ्रू आप 1,4 डाइफंक्शनलाइज्ड स्केलेटन जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आमतौर पर। तो मोस्टली जो है वो 1,4 डाइफंक्शनलाइज्ड में हम इससे कंस्ट्रक्ट करते हैं 1,4 डाइकार्बोनिल स्केलेटन, क्योंकि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं यहाँ पे वो मोस्टली कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है कि आप इससे 1,4 डाइकार्बोनिल स्केलेटन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रेटजी ऑफ FGA फंक्शन ग्रुप एडिशन। फॉर एग्जांपल, FGA of triple bond gives a simple strategy for constructing 1,4 difunctionalized compound। तो अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी अगर आप FGA कर रहे हैं तो आपके पास वो 1,4 डाइफंक्शनलाइज्ड की तरफ आपको लेके जाएगा। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर ओवरऑल 6 है, 5 मिथाइल डाइहाइड्रोफ्यूरन 2 3H ऑन। अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो
सबसे पहले आप CO डिस्कनेक्शन करेंगे एज यूजुअल, जिस तरह प्रीवियस में नाइट्रोजन के केस में आपने की थी। तो अब ये डिस्कनेक्शन, क्योंकि वहाँ पे आपने अमोनिया निकालना, तो आपने इधर से भी डिस्कनेक्शन किया, तो अब ये साइड आपकी OH बन जाएगी, तो इधर से आपने डिस्कनेक्शन करनी है, तो ये OH बन जाएगा, यानी अल्कोहल ग्रुप ओवर ये एसिड ग्रुप। तो फॉरवर्ड में कंडेंसेशन से ये बनेगा, वाटर निकलेगा इधर से भी। उसके बाद इस कंपाउंड की फर्दर आप FGA कर लें। FGA आप कौन से ग्रुप की आप कर रहे हैं यहाँ पे? FGA, हाँ FGA, दिस इज नॉट FTI। एक FTI होता है फंक्शन ऑफ एंटर कन्वर्जन, तो ये FGA फंक्शन ऑफ एडिशन। इस जगह पे आपका कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं है। आप देख सकते हैं ये वैकेंट पोजीशन है, यहाँ पे इस वक्त कोई फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं है। तो इस जगह पे जब आप ट्रिपल बॉन्ड लेके आएंगे, ये कोई भी ग्रुप आप यहाँ पे लाएंगे इस जगह पे, तो वो FGA कहलाएगा, फंक्शन ग्रुप एडिशन। अब यहाँ पे जो चूंकि हमारा जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड ला के अपना डिजायर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप FGA कर लें, इसकी फंक्शन ग्रुप एडिशन कर लें, उसके बाद ये अल्काइन बन गया। तो अब इसमें आप कैसे डिस्कनेक्शन फर्दर करेंगे? आप देखें, आप इसको थोड़ा फेवरेबल बना रहे हैं, जाहिर है ये वाला कंपाउंड आपको इसी से बनेगा। जब आप फॉरवर्ड में बनाएंगे तो अल्काइन से ये कंपाउंड बनेगा। तो रेट्रो में आपने फिर डेफिनेटली इस ग्रुप को फिर क्या करना होता है? इंट्रोड्यूस करना होता है। अब यहाँ से आप इसकी डिस्कनेक्शन कर लें, CC डिस्कनेक्शन है, तो आपका ये वाली साइड आपकी अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन बन जाएगा, और साथ इधर से कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। उसके बाद फर्दर रेट्रो आप इसकी करें तो ये आपके पास डेफिनेटली ये वाला पार्ट आपका जो अल्कोहल वाला पार्ट है ये एसिटल्डिहाइड से आएगा, और ओवरऑल स्टार्टिंग मटीरियल आपका साथ दूसरा स्टार्टिंग मटीरियल क्या होगा? अल्काइन, दैट इज एसिटाइलीन। इसकी फॉरवर्ड सेंसेस देखते हैं। अल्काइन को एज यूजुअल आप सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट करेंगे, उसको साल्ट बनेगा, और वो जो नेगेटिव आयन है, यानी इसका जो ओवरऑल ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये C नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर? इस कार्बोनिल के ऊपर। तो उसके बाद जो इसका ऑक्सीजन आयन बनेगा, उसकी आप प्रोटोनेशन कर लें तो ये आपके पास अल्कोहल बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट करना है। इधर से N-ब्यूटाइल निकलेगा। N-ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है? यहाँ पे ये इस प्रोटॉन को यहाँ से आसानी से निकालेगा। अब ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो आपके पास जो है वो इसका उसी तरह जिस तरह यहाँ पे एनाइन बना था, ये एनाइन बन जाएगा। तो अब चूंकि इसमें लिथियम आप यूज़ कर रहे हैं तो इस जगह पे आप सोडियम यूज़ कर रहे हैं, तो सोडियम एमाइड यहाँ पे आपने N-ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करना है। ये मोर पावरफुल बेस है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो कंजुगेट एसिड है आप देख सकते हैं इसकी पीके वैल्यू अमोनिया से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके पास इसको फिर आपने CO2 के साथ ट्रीट करना है। ये CO2 के ऊपर अटैक करेगा। CO अब इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा, इसका जो कार्बोनिल कार्बन है, तो उसकी फिर आप हाइड्रोलिसिस कर लें, प्रोटोनेशन यानी कर लें यहाँ पे, तो आपके पास ये एसिड बन जाएगा ओवरऑल। तो इसके बाद आपने क्या करना है? फिर आपने इस ट्रिपल बॉन्ड, चूँकि आपका अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे सेचुरेटेड बॉन्ड आ रहा है, यानी यहाँ पे ये सेचुरेटेड पोजीशन है, यहाँ पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो अब आपने इसकी क्या करनी है? रिडक्शन करनी है। तो कैटालिटिक रिडक्शन कर लें इथेनॉल की मौजूदगी में, तो ये पोजीशन रिड्यूस हो जाएगी, इसमें कंप्लीट रिडक्शन होगी, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है? इधर कंडेंसेशन कर लें, डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ से ओवरऑल कंडेंसेशन यानी होगी वाटर इधर से इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो जाएगी इस केस में। तो ओवरऑल यानी इन दोनों की कंडेंसेशन से आपके पास क्या रिमूव होगा? वाटर रिमूव होगा। तो आपके पास यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? योर एंड प्रोडक्ट विल बी 5 मिथाइल डाइहाइड्रोफ्यूरन 2,3H ऑन जो के टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ फंक्शन ग्रुप एडिशन, कि कुछ केसेस में आप फंक्शन ग्रुप एडिशन के थ्रू 1,4-डाई फंक्शनलाइज्ड स्केलेटन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन ग्रुप एडिशन इन्वॉल्व कहाँ पे होगा? रेट्रोसिंथेसिस में आप उस ग्रुप को ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अगर आप इसी को देखें तो अब इसमें यहाँ पे फिर आपने फिर कोई और गाइडलाइन यूज़ करनी होगी अगर आप इस रूट से नहीं जाएंगे। तो इस रूट से जाएंगे तो आपने फिर यहाँ ग्रुप ऐड करना है, तब आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप को यहाँ ऐड कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रूट बन जाता है फॉरवर्ड सिंथेसिस के लिए। तो इसीलिए बहुत सी जगहों पे हमें फंक्शन ग्रुप एडिशन स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होती है। This is end of today's lecture. Thank you.